Welcome to lecture number 4 of Computer Architecture and Organization. So in today's lecture, we'll see memory operations. It's a continuation of lecture number 3. So we'll see more about memory, and then we'll discuss instruction and basic instruction types. So the memory operations जो हम यूज करते हैं inside computer, so both the instruction and data are stored in memory locations. To execute any instruction, processor must bring that instruction from memory to processor to be processed. So हमें क्या करना होता है कि अगर ये कोई इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन और डेटाज आर स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी एज वी ऑल नो, एंड टू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर हैज टू ब्रिंग दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू प्रोसेसर. सो ये एक ऑपरेशन है. सो से दिस इज प्रोसेसर एंड दिस इज अवर मेमोरी. सो bringing data or bringing instruction from memory is called as load phase. It is called as loading of instruction. So loading of data or instruction from memory to processor. And when a data is stored from processor to memory or data is sent from processor to memory, this phase is called as store phase. So there are two memory operations. Simply हम ऐसा बोल सकते हैं कि memory operations दो है, load and store. So what is meant by load? When we bring something from memory to processor, it is called load. And when we send something means data or instruction or signal, anything from processor to memory, it is store phase. So there are two basic operations which involving memory is load and store. ठीक है. सो अब ये लोड ऑपरेशन किस तरह से होगा वो बताता हूं मैं. लोड ऑपरेशन, व्हाट इज मीन बाय लोड ऑपरेशन? सो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसर सेंड्स टू लोकेट डिजायर्ड एड्रेस. सो आई नीड टू लोड इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेमोरी. सो प्रोसेसर send signal to locate memory. सबसे पहले हमें वो मेमोरी सर्च करना पड़ेगी जहां का डेटा हमें लोड करना है. सेकेंड लोड फेज में सेकेंड इज प्रोसेसर इश्यूज रीड सिग्नल. प्रोसेसर इश्यूज read signal. So processor issues read signal. Then memory read data from that memory location. So processor क्या करेगा, उस memory location का डेटा रीड करेगा. So memory will get read, and then memory sends the read data from memory to processor. Data to processor from memory. So this is load operation. अब हम देखते हैं what is स्टोर ऑपरेशन. स्टोर ऑपरेशन किस तरह से रहेगा, प्रोसेसर सेंड्स टू लोकेट डिजायर्ड एड्रेस. तो फिर से हमें इफ आई वांट टू स्टोर द डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू एनी मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब है फर्स्ट आई हैव टू लोकेट दिस मेमोरी लोकेशन. सो लोकेट मेमोरी लोकेशन. सो लोकेट मेमोरी लोकेशन. उसके बाद देन प्रोसेसर इश्यूज राइट
प्रोसेसर इशूज राइट सिग्नल. राइट सिग्नल क्या करेगा? इट विल राइट डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोसेसर. उसके बाद लास्टली कंटेंट गेट सेव्ड. कंटेंट गेट सेव्ड इनसाइड मेमोरी. सो इसका मतलब है वी सेंड द डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी. प्रोसेसर टू मेमोरी. So this is store operation. So memory, there are two basic memory operation, load and store. Load means taking data from memory to processor. Store means sending data from processor to memory. This is load and store. Okay, so let's see next part. Now the next part is instructions. So we all know what is meant by instructions already. So there are 4 types of operations that computer performs. 4 types of operations that computer performs typically. First is data transfer between memory and register. Data transfer between memory and register. Data transfer between memory and register. Second is arithmetic and logical operation, means ALU operations. Second is ALU operations. Then third is program sequencing and control. Third is program sequencing and control. Okay, and then fourth is IO operations. So there are these 4 instruction type. So let's see the examples. Data transfer between memory and register. So move operation, then push, pop. This type of operation is data transfer operation. Exchange, this type of operation. ALU operations are these we all know: add, sub, multiply, div, division, and, or, not. These are the ALU operation. Program sequencing and control means call, then loop. Loop is used for continuous loop operation. Program sequencing and control. Call is used for function call, like that. So call a function. Then input output operation are in out, in and out. So we'll discuss it later in this unit. So these are the 4 instruction types. So computer generally performs these 4 types of instruction. Let's see the register transfer notation. Let's see register transfer notations. Register transfer notations. So register transfer notations are used for memory location, processor register, and registered in IO devices. These register means in memory location registers, then processor registers, and even register inside input output units. Okay, so let's see the example. So this how the notation is done. नोटेशन किस तरह से होता है? सो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि R1 और यहां पे मैं एक डेटा सेंड कर रहा हूं. सो दिस इज द एरो. सो दिस मीन्स कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन LOC इज ट्रांसफर्ड टू R1. सो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन LOC टू R1. अगर मैं ऐसे लिखता हूं R1 और इसमें मैं सेंड कर रहा हूं 1000, इसका मतलब है कि 1000
कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1000 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कहां स्टोर होगा? R1 में. अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सो दीज आर द नोटेशंस R1 प्लस R2. इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कंटेंट ऑफ R1 is added with content of R2 and store कहाँ हुआ है? R3 में. So this is content of memory location R1 and content of memory location R2 has been added and then the result is stored inside R3. So these are the register transfer location. Register इस तरह से हम these are the notations how we use the register. उसके बाद आपको शायद पता है, आपने ये लास्ट इसमें देखा था, असेंबली लैंग्वेज नोटेशन. असेंबली लैंग्वेज नोटेशंस. सो वी ऑल नो दिस असेंबली लैंग्वेज नोटेशन. एग्जाम्पल है इसके, जैसे मूव से लोकेशन A, R1. सो सेम मैंने यही रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन अगर ऐसे होगा तो उसका असेंबली लैंग्वेज नोटेशन, करस्पॉन्डिंग असेंबली लैंग्वेज नोटेशन क्या होगा? मूव लोकेशन A to R1. इसका मतलब क्या होता है? मूव द कंटेंट ऑफ लोकेशन A to R1. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हेन वी राइट लाइक मूव लोकेशन A R1, सो लोकेशन A के कंटेंट मूव होंगे R1 में. ओके. अगर मुझे एडिशन के लिए मीन्स एडिशन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए असेंबली लैंग्वेज नोटेशन कैसे होगा? एड R1, R2, R3. So add the content of R1 and R2 and store it in R3. Add the content of R1 and R2, content of R1 plus content of R2, और ये कहाँ स्टोर होगा? R3 में. So content of R1 and R2 are stored inside R3. So यहाँ पे this is, ये जो है this is opcode. इंस्ट्रक्शन में this is opcode and these are the operands. So we have discussed this in last lectures के जो इंस्ट्रक्शन होती है, the operation is opcode, operational code, hence it is called as operational code, right? And then operands are inside memory. ये कहाँ पे होते हैं? जनरली inside memory. So these are operands, opcode and operands. Okay, then let's see. So these are the register transfer notation, these are the assembly language notation. Assembly language notations are relatively easy to understand. So ये हम understand कर सकते हैं इससे, इसलिए हम जनरली असेंबली लैंग्वेज नोटेशन यूज करते हैं या ये हम समझ पाते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप्स. बेसिक इंस्ट्रक्शंस टाइप्स. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो हम देखते हैं उसको. Now let's see the instruction type. So first instruction type is 3 address instruction. 3 address. ठीक है. इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा? इसका सिंटैक्स होगा opcode सबसे पहले, then source 1, source 2, then destination. ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये सभी इसमें कॉमन लेता हूं. एक एग्जांपल है से C इक्वल्स टू A प्लस बी. C इक्वल्स टू A प्लस बी. सो हम ऐसा समझेंगे कि A और B के कंटेंट ऐड हो रहे हैं. A एंड B कैन बी रजिस्टर,
कैन बी मेमोरी। सो अभी हम समझेंगे कि वो एक सिंपली रजिस्टर है, तो इसके कंटेंट ऐड करने और उसको सी में स्टोर करना है। सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अगर इसको लिखना है तो हम ये कैसे लिखेंगे? सो ये आएगा ऐड ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या होगा? ए और बी के कंटेंट ऐड हो गए और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? सी में। सो दिस इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन टाइप है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन टाइप जो है हमारी, दैट इज 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सो द सिंटैक्स इज अगेन opcode, then source and destination. अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? सेम एग्जांपल, इसको किस तरह से लिखेंगे? देखो, add a कॉमा b एंड देन उसके बाद move b कॉमा c। तो यहां पे मैंने क्या किया है? यहां पे क्या किया था? c इक्वल्स टू a प्लस बी। ये तो सिंपल था। यहां पे क्या कर रहा हूं? b इक्वल्स टू, सबसे पहले दिस एड a कॉमा b में क्या होगा? a और b के कंटेंट ऐड होंगे और रिजल्ट कहां स्टोर होगा? b में। तो b इक्वल्स टू a प्लस बी। लेकिन मुझे रिजल्ट कहां चाहिए? c में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? सिंपली मूव कर रहा हूं। तो c इक्वल्स टू b। सो b इक्वल्स टू a प्लस बी एंड देन b में मेरे पास रिजल्ट है, तो b को कहां स्टोर किया? c में। सो दिस इज 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। थर्ड टाइप इज 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसका क्या होगा? opcode so opcode then source or destination. It can be source and it can be destination. Either यहां पे 2 है, यहां पे एक ही आएगा, opcode and source और destination। ठीक है। अब देखो, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम जब यूज करते हैं, सो वी यूज accumulator फॉर एनी ऑपरेशन। एक्यूमुलेटर का यूज होता है जब हम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। सो यहां पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं लोड एंड स्टोर, लोड एड स्टोर। जनरली हम यूज करते हैं लोड एंड स्टोर। सो देखो, अब सेम एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं तो ये कैसे होगा? सी लोड ए का मतलब क्या होगा? एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया? ए। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या स्टोर हो गया? ए। उसके बाद मैं कर रहा हूं ऐड बी से क्या होगा? एक्यूमुलेटर ऐड होगा बी के साथ, एक्यूमुलेटर ऐड होगा बी के साथ। तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा एक्यूमुलेटर प्लस बी। सो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया अभी मेरे पास? हमारा एडिशन। देन मैं करता हूं स्टोर सी से क्या होगा? एक्यूमुलेटर जाके कहां स्टोर होगा? सी में। तो C इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं? आपने ALP में देखा था, AX रजिस्टर जो था वहां पे वो यूज होता था एज एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर्स जो होते हैं, दीज आर जनरली यूज एज फॉर काउंटिंग। ठीक है, दे आर यूज फॉर काउंटिंग रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स। ओके। देन लास्ट टाइप इज, इंस्ट्रक्शन टाइप इज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें होगा सिर्फ ऑपकोड एंड वी कैन डू दिस ऑपरेशन। ये C इक्वल्स टू A प्लस बी इससे नहीं कर सकते हैं, बट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज इनसाइड दिस इज पुश एंड पॉप। इस टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है, these are zero address instructions. So these are the basic instruction type. So there are 4 types of instruction, 3 address instruction, syntax है opcode, source 1, source 2, destination. उसके बाद instruction type जो second है वो है 2 address instruction, syntax होता है opcode, then source, destination. 1 address instruction है opcode, source और destination, और 0 address होता है opcode. मैंने आपको ये बता दिया। इसमें हम एग्जांपल्स में हमने ये देखा है कि हम कौन से टाइप के ऑपकोड्स यूज कर सकते हैं। तो 3 एड्रेस में होता है ऐड, सब, मल, इस तरह से। 2 एड्रेस में भी सेम। 1 एड्रेस में हम यूज करते हैं लोड, स्टोर। लोड से हम, बिकॉज 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूजेस एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यूज होता है फॉर ऑपरेशन। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करता है
एक्यूमुलेटर फॉर ऑपरेशंस। सो अगर मुझे कोई वैल्यू एक्यूमुलेटर में डालनी है तो आई यूज लोड, अगर मुझे एक्यूमुलेटर से कहीं और उसको स्टोर करना है तो यूज करता हूं मैं स्टोर। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिंटैक्स इज ऑपकोड ओनली, सिर्फ एक ही आएगा उसमें, और वी यूज पुश पॉप लाइक इंस्ट्रक्शन इनसाइड जीरो इंस्ट्रक्शन टाइप। ओके, let us see two examples using this. So let's see c equals to a minus b, अगर ये मुझे करना है using 3 address instruction. So ये किस तरह से होगा, c equals to a minus b. So मुझे क्या करना है, a में से b निकालना है और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, c में। ये कैसे होगा, सिंपल, सबट्रैक्ट क्या, a कॉमा b कॉमा c, सिंपल। सो दिस इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दिस इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यही सेम मैं 2 एड्रेस से कैसे करता हूं, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सेम कैसे करूंगा। सो अब मुझे क्या करना है, सेम ऑपरेशन यूजिंग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये कैसे होगा, सब व्हाट, ए कॉमा बी। इससे क्या होगा, ए और बी का सब्सट्रैक्शन होगा और रिजल्ट कहां स्टोर होगा, बी में। अब मुझे क्या करना है, इसको सी में स्टोर करना है। सो इट इज मूव बी कॉमा सी। सो सब ए कॉमा बी, मूव बी कॉमा सी। सेम अब करना है मुझे 1 एड्रेस से। 1 एड्रेस से कैसे होगा, 1 एड्रेस से कैसे होगा। सो अब मुझे क्या यूज करना पड़ता है 1 एड्रेस में, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लोड व्हाट, ए, लोड ए, उसके बाद सब बी, देन स्टोर सी। दिस इज 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब सेम यही मैं ये इंस्ट्रक्शन लेता हूं, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी। अब यहां पे अगर बॉडमास रूल से देखा जाएगा तो बी इंटू सी सबसे पहले होगा, फिर इनका रिजल्ट जो आएगा वो हम एडिशन करेंगे ए के साथ, एंड देन हम उसको स्टोर करेंगे कहा, आखिरी में डी में। सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से ये किस तरह से हो सकता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से ये किस तरह से हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से हम इसको किस तरह से करेंगे। सो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है बी और सी का, देन उसको ऐड करना है ए में, और फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है डी में। सो देखो मैं किस तरह से करता हूं इसको, मल्टीप्लाई बी कॉमा सी। ठीक है, बी कॉमा सी होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और स्टोर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आइदर बी और सी, तो मैं लिखता हूं यहां पे बी। सो मल्टीप्लाई बी सी और बी, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा बी और सी का और रिजल्ट कहां स्टोर होगा, बी में। अभी मेरे पास रिजल्ट कहां स्टोर है, बी में स्टोर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐड क्या, ए कॉमा ए ऐड कर रहा हूं किसके साथ, बी के साथ। रिजल्ट कहां था स्टोर, बी में, बी और सी, बी इंटू सी का रिजल्ट कहां स्टोर है, बी में। तो मैं ऐड कर रहा हूं ए प्लस दैट रिजल्ट, तो रिजल्ट कहां है, बी में, इसलिए ऐड ए कॉमा बी। और ये दोनों का एडिशन यानी ये टोटल कहां स्टोर होना चाहिए, डी में, इसलिए मल्टीप्लाई बी कॉमा सी कॉमा बी। सो बी में बी इंटू सी स्टोर होगा और फिर ऐड ए कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है, सो दिस इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब मुझे करना है सेम विथ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये इजी है, मल्टीप्लाई उसके बाद बी कॉमा सी। सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लाई बी कॉमा सी। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ऐड क्या, ऐड करना है मुझको ए को इसके साथ। अब मल्टीप्लाई बी कॉमा सी, रिजल्ट कहां स्टोर है, सी में, इसलिए ऐड ए कॉमा सी, उसके बाद आखिरी में मूव क्या, यहाँ पे ऐड ए कॉमा सी, तो स्टोर कहां होगा, रिजल्ट सी में। अब मुझे क्या मूव करना है, सी को मूव करना है, कहां पे, डी में। सो मूव सी कॉमा डी। ठीक है, मल्टीप्लाई बी कॉमा सी, सी में रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, एड ए कॉमा सी से क्या होगा, सी इक्वल्स टू
ए प्लस सी, और मूव सी कॉमा डी क्या होगा, तो डी इक्वल्स टू सी। सो आखिरी में डी में हमें रिजल्ट मिलेगा। अब देखो लास्ट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से ये कैसे कर सकते हैं हम। सो इट इज, सबसे पहले करूंगा मैं लोड सी को लोड किया मैंने। उसके बाद मुझे, तो लोड सी से क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, सी। अब मुझे क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं MUL मल बी, मल्टीप्लाई क्या, बी। सो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू बी इंटू सी, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ बी इंटू सी। उसके बाद क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, ऐड। अब ये जो है बी इंटू सी, ये कहां पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में, उसी के साथ ऐड कर देता हूं। तो ऐड क्या, ऐड ए से क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही, फिर से एक्यूमुलेटर में ही क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्यूमुलेटर, जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट था वो एक्यूमुलेटर के साथ ए ऐड हो जाएगा और वही स्टोर हो जाएगा फिर से एक्यूमुलेटर में। एंड लास्टली मुझे ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट कहां पे चाहिए, डी में, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं, स्टोर डी। सो these are the two examples, c equals to a minus b हम किस तरह से कर सकते हैं, और d equals to a plus b into c कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो you all need to practice, या एक आप ये करके देखिए, e equals to a into b plus c into d, ये आप एक करके देखिए एंड देन टेल मी कि इसका आंसर क्या आता है। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं इसको कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पे हमने देखा मेमोरी ऑपरेशंस एंड देन वी वेंट टू इंस्ट्रक्शंस एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप्स। ठीक है, आपको अगर ये सब लगता है, अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। ओके।